منسٹر د کوهستان او سوات په دوره دی هغه ته وزیر اعظم ته بریفینګ ورکړی شوی دی. دا مهال وزیر اعظم میډیا بریفینګ ورکړي دا چې وی ګورو. کوئی شک نہیں، لیکن غلط پلاننگ کی وجہ سے، جس کو میں مین میڈ ڈیزاسٹر کہتا ہوں، کہ جو ہوٹلز ہیں ان کو بالکل دریا کے اندر ان کو تعمیر کیا گیا، وہ بڑا غلط تھا. وہ پانی میں آنن فانن سب وہ مسمار ہو گئے، بہہ گئے. اسی طریقے سے گھر جو ہیں وہ بیچارے لوگوں کے وہ ان کو نقصان پہنچا. مگر راستے میں سڑکیں جو ہے ہائی وے جگہ جگہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے. پل جو ہیں وہ سٹیل بریجز وہ بہہ گئے ہیں. تو بہت یہ نقصان ہوا ہے. اور پوری طرح حکومت پاکستان صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اور افواج پاکستان دن رات یہ کوششیں کر رہے ہیں عوام کی بحالی کے لیے. این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، صوبائی حکومت اور تمام جو منتخب نمائندے، سب انتظامیہ مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. کلام میں ہزاروں سیاح ہیں، لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل قمر باجوہ صاحب کا، چیف آف ایئر سٹاف کا. سب مل کر ہیلی کاپٹرز انہوں نے مہیا کیے ہیں اور وہ دن رات وہ ان کو انخلاء جاری ہے. اور مجھے ابھی یہاں پر بتایا ہے کہ کل تک انشاءاللہ، کل شام تک امید ہے کہ باقی بھی جو سیاح وہاں پر موجود ہیں وہ انشاءاللہ ان کا انخلاء ہو جائے گا. یہ جو تباہی آئی ہے یہاں پر، تو دریا جو ہے وہ بھر گئے اور سندھ میں، بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچائی اور تمام میدانی علاقے وہ لگتا ہے کہ سمندر وہ ہر طرف پھیل گیا ہے. اور 1000 سے زیادہ جانیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور فصلوں کا بے پناہ نقصان پہنچا ہے. میں سندھ میں ہزاروں ایکڑ جو فصلیں ہیں، لاکھوں ایکڑ وہ بالکل تباہ ہو گئی. کھجور کے درخت، چاول کی فصل، کپاس کی فصل، ادھر جعفر آباد میں، نصیر آباد میں اور باقی جگہوں پر تباہی ہو گئی ہے. فصلیں تباہ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے. تو جو یہ جانور جو ہیں وہ بہہ گئے. تقریباً 7 لاکھ جانور جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں اور سب چلے گئے، پانی کے حوالے ہو گئے. اور لاکھوں لوگ اس وقت آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑی کوشش کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی گئی ہیں، ان کو محفوظ جگہوں پر پہنچایا گیا ہے. تو میں یہ اس کی پوری قوم کو، میں ان کی دعائیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، میں شاباش دیتا ہوں. این ڈی ایم اے کو، پی ڈی ایم ایز کو، صوبائی حکومتوں کو اور افواج پاکستان کو، جن کے افسر اور جوان خود اس ساری کاوش کی نگرانی کر رہے ہیں. مجھے بھی بتایا گیا کہ کل سپہ سالار جنرل باجوہ بھی اس علاقے میں آئے تھے اور انہوں نے بڑی ہدایت دی ہیں کہ جلد سے جلد جو ریپیئر ورکس اس کو مکمل کیا جائے، انخلاء کو مکمل کیا جائے. تو اس وقت بلوچستان میں، سندھ میں سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل ٹوٹ گئے، جو بجلی کے کھمبے وہ گر گئے، تاریں وہ ٹوٹ گئیں، ٹرانسفارمرز خراب ہو گئے. اس وقت منسٹر جو پاور ہیں وہ ذات خود سندھ میں موجود ہیں، سیکرٹری پاور جو ہیں وہ بلوچستان میں موجود ہیں، اور چیئرمین جو ہمارے جو ہیں این ایچ اے کے وہ بلوچستان میں موجود ہیں. میرا ان سے پورا رابطہ ہے. یہاں پر ابھی این ایچ اے کے ہیڈ جو ہیں مجھے یہاں پر ملے ہیں. تو اس کے لیے ایف ڈبلیو پوری طرح وہ اپنے وہ مصروف عمل ہے. میں ڈی جی ایف ڈبلیو سے میری ابھی اسلام آباد جا کے بات ہوگی. این ایچ اے پوری طرح روب عمل ہے. اس طرح جو انجینئرنگ کور ہے جو پاکستان آرمی کی، وہ پوری طرح ایکٹیو ہے. تو یہ سب مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ فیشن میں وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے
वफाकी हुकूमत ने 28 अरब रुपया जो मुहैया किया है NDMA के ज़रिए और बिस्प के ज़रिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो है व्हीकल, वो है निज़ाम जिसके ज़रिए वफाकी हुकूमत 28 अरब रुपया हर मुतासरा ख़ानदान को 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान मुहैया किया जा रहा है। सिंध में भरपूर काम जारी है, बलूचिस्तान में जारी है, अब KP में भी इसको शुरू किया जा रहा है, पंजाब में भी, जनूबी पंजाब में भी, और गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर, जहाँ जहाँ ये घर मुतासर हुए हैं सैलाब से, उनको 25,000 रुपये दिया जा रहा है। 10 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान वफाकी हुकूमत उन ख़ानदानों को दे रही जिनके प्यारे बिछड़ गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। ये 1,000 से ज़्यादा लोग हैं, इनमें 300 बच्चे शामिल हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, उनके लिए भी हमने 3-3 लाख रुपए हमने उनका ज़ख्मियों का रखा है मुआवजा। ये कोई जो नकद मुआवजा दिया जा रहा है, ये कोई जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है उसका ये कोई मुतबादल नहीं है। उनके प्यारे हमेशा उनको याद रखेंगे जब तक ये दुनिया कायम है, लेकिन हुकूमत का फ़र्ज़ है, हम पूरी तरह इसमें अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत अब 28 अरब रुपया जो मुहैया किया है, अब खबरें आ रही हैं कि इससे भी ज़्यादा नुकसानात हैं, तो इंशाअल्लाह और भी हम रकूम मुहैया करेंगे। फसलों का नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है, सड़कात का, पुलों का, 3,500 किलोमीटर के करीब पूरे पाकिस्तान में सड़कों को नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों पुल उखड़ गए हैं, डैमेज हुए हैं, फ्लाई ओवर्स। इधर मैं आपको अभी बताया मैंने कि पूरे रूट में कलाम से लेके यहाँ तक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कई जगह से सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं। तो इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सिंध के लिए 15 अरब रुपए का हमने ग्रांट का ऐलान किया, जो NDMA के साथ मिलकर ये काम वहाँ पर किया जाएगा। हमने बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए का हमने ऐलान किया वफाक की तरफ से, जो NDMA और बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिल जाएगा। और आज मैं यहाँ पर KP में जो अपना यहाँ पर बहुत बेपनाह नुकसान यहाँ पर हुआ है, इसके लिए भी मैं 10 अरब रुपए का मैं ऐलान करता हूँ ग्रांट का KP में, ताकि जो ये NDMA और KP के साथ मिलकर हम ये काम करेंगे। अमीर मुकाम हमारे यहाँ के सदर ये मौजूद हैं, नजमुद्दीन खान मौजूद हैं यहाँ पर, और कहाँ दुरानी साहब मौजूद हैं ये, और बाकी तमाम, ये एक मुतहद्दा हुकूमत है, यानी ये मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है। सब हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इस कौम की खिदमत करें और इसके लिए दिन रात मेहनत करें। तो ये फंड्स, मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि NDMA आप सबके साथ मिलकर दिन रात आप काम करेंगे और शफाफ तरीके से ये पैसा यहाँ लगेगा। मैं खुद इसकी ज़ाती तौर पर भी निगरानी करूँगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह मैं ये दौरे करता रहूँगा तावक्त है कि आखिरी घर जो है, आखिरी फ़र्ज जो है, वो अपने घर में दोबारा आबाद नहीं हो जाता। एक बड़ा कठिन मरहला है, हमें बाहर के ममालिक से, दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, वो भी हमें मदद फराहम कर रहे हैं। मुझसे तुर्की के सदर ने, मुझसे UAE के सदर ने, मुझसे ईरान के सदर ने, उनकी मेहरबानी, 4 दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम हर तरह से पाकिस्तान की खिदमत के लिए हाजिर हैं। तुर्की के जहाज़ दिन रात सामान लेके आ रहे हैं, UAE के अबू धाबी से जहाज़ दिन रात सामान लेके आ रहे हैं, और जिनमें खैमे हैं, जिनमें अद्वियात हैं, खाने पीने की अशिया हैं। अब तुर्की की पहली जो एक ट्रेन जो है, तकरीबन शायद 30 जो डब्बे जो हैं वो सामान लेके इस्तांबुल से रवाना हो चुके हैं, और इस तरह, और आज भी एक ट्रेन चलनी है तुर्की से, कल भी चलेगी, परसों भी। इसी तरह UAE से हर रोज़ जहाज़ आ रहे हैं, एक एयर ब्रिज बन गया है, और वो इस्लामाबाद, कराची वो ये सामान पहुँचा रहे हैं, और आगे NDMA सूबों की PDMA से मिलकर इस सामान की तकसीम कर रहा है। कल अमेरिका ने $30 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। मैं आज बता रहा हूँ, जब
यूएई के सदर मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन ज़ायद से मुझसे 4 दिन पहले बात की तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। इस तरह तुर्की के सदर ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया, इसी तरह ईरान के सदर ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और यूएई के सदर जनाब मोहम्मद बिन ज़ायद ने मुझे कहा कि पहली किस्त जो है $50 मिलियन की का सामान हम फौरी तौर पर तस्कील कर रहे हैं और ये पहली किस्त है। इसके बाद जितनी भी ज़रूरियात पाकिस्तान की होंगी हम भरपूर इसमें हिस्सा डालेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। मैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की शुक्रगुजार हूँ। कल उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की मदद से वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो और हुकूमत पाकिस्तान सब ने उनको जो महकमे हैं मुतल्लिका उन्होंने वो फ्लैश अपील तैयार की जो कि कल अक़वाम मुत्तहिदा ने $160 मिलियन का उन्होंने प्रोग्राम बनाया और ये ट्रिगर करेगा बाकी जो इदारे हैं मल्टी नेशनल बायलैटरल जो इदारे हैं डोनर्स हैं एजेंसीज हैं वो इंशाअल्लाह अपना हिस्सा डालेंगी। तो हम ने उनको यकीन दिलाया, मैंने उनको यकीन दिलाया कि हम इंशाअल्लाह ये तमाम पैसा बहुत शफाफ अंदाज में हम इंशाअल्लाह इसको लगाएंगे और आखिरी पैसे के हर पैसे के उनके चाहे वो पाकिस्तान की वसाइल है या बाहर से हम इंशाअल्लाह उसके एक अमीन बनकर अमानत को आवाम तक पहुँचाएंगे। और इन तमाम दोस्त जो यहाँ पर मौजूद हैं मेरी इनसे भी गुजारिश है, मेरे जो ज़ुअमा हैं इस कोलिशन गवर्नमेंट के उन सब से गुजारिश, मुझे पूरा यकीन है कि वो और सूबाई हुकूमतें मिलकर NDMA PDMS अफवाज पाकिस्तान आवाम को इन लाखों लोगों को जो दुखी इंसानियत है इनका हाथ थामेंगी, इनको घरों में आबाद करेंगी और इंतहाई शफाफ और ईमानदारी से और शबाना रोज़ मेहनत करके ये पैसा ये वसाइल उनके कदमों में निछावर करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपना हमने अभी IMF से जो प्रोग्राम हुआ है उससे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट से बच गया है, लेकिन मेरा आपको कौम को पैगाम है कि खुदा करे ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम है। उसके बाद हम हिम्मत करें, वसाइल इकट्ठे करें, मेहनत करें और जो अल्लाह ने हमें जो दौलत दी है ज़मीन की सूरत में, ख़जाने दिए हैं मादनी दौलत की सूरत में, जो इंसान दिए हैं जो यहाँ मौजूद हैं पूरे मुल्क में फैले हुए, जिनको जहन दिए हैं, अक्ल दी है और फिर पाकिस्तान के अंदर जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और खेती बाड़ी है, ज़राअत है और सनतें हैं, ताजर हैं, अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। कायद आज़म का जो ख्वाब है उसकी ताबीर होगी इंशाअल्लाह, अमली सूरत होगी और वो लाखों लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, आपके बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो उनकी रूहें कब्रों में उनको सुकून मिलेगा अगर हम अपने क़ुव्वत के साथ हम इन मसाइब का मुकाबला करके अपनी इस नस्ल को और आने वाली नस्लों को अगर हम सुकून देंगे, उनको इज़्ज़त देंगे, वक़ार देंगे, पाकिस्तान का मकाम दुनिया में जो हम खो चुके हैं उनको दोबारा बहाल करेंगे तो ये बहुत बड़ी इस कौम की खिदमत होगी। इन जो जमातें हैं जिन्होंने ये हुकूमत बनाई उनकी बहुत बड़ी खिदमत होगी, सूबाई हुकूमतों की खिदमत होगी और मैं समझता हूँ कि तमाम वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने ये कुदरत दी है, अल्लाह ने उनको मकाम दिया है कि वो पाकिस्तान की तकदीर बदलें और पाकिस्तान में जो दुख हैं उनको सुख में बदलें, जो गमी हैं उनको खुशी में बदलें। तो यही सियासत है और यही मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला को हुक्म है और यही हमारा फ़र्ज़ है और यही कौम हमसे तकाज़ा करती है। मैं इन अल्फाज के साथ मैं इंशाअल्लाह जो इजला इस दौरे में नहीं कर सका वो इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। दीर है जो खान साहब का इलाका और भी ये हमारा सबका साझा फ़र्ज़ है और शांगला है और बाकी जो इलाके हैं जो कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान और दूसरे इलाके हैं, इंशाअल्लाह मैं वहाँ पर मैं हाज़िर हूँगा, धीर में भी अपर धीर में भी, और इंशाअल्लाह मैं आवाम तक पहुँचूँगा। जो इंसानी बस तक है, जो हमारी जो कुदरत ने हमें जो सलाहियत बख्शी है, जो हमें हिम्मत दी है, हम उनको अल्लाह को मान कर, उसको जान कर, उसका नाम लेकर और उसकी रज़ा से हम पूरी कोशिश करेंगे बाकी नताइज उस खुदा के
ہاتھ میں ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔